Hello everyone, I hope you all are doing great. So in this lecture we will be talking about types of propensities to save. One type is average propensity, another type is marginal propensity. I believe you have watched my previous lecture related to APC and MPC. If you haven't watched it, I will suggest you to watch it first and then only you will be able to understand this lecture in a better way. So the very first topic of today's class is average propensity to save. तो यहाँ पर हम ये समझते हैं बेसिकली इकोनॉमी में जितने भी लोग पैसे कमा रहे हैं वो ऑन एन एवरेज कितना पैसा सेव कर रहे हैं, दैट इज व्हाट एपीएस इज अबाउट. तो कितने पैसे लोगों ने अपनी इनकम में से सेव कर दिए उसकी जो एवरेज होती है दैट इज कॉल्ड एज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव. वी ऑल नो दैट व्हेन इनकम इंक्रीजेस सेविंग आल्सो इंक्रीजेस बिकॉज व्हेन पीपल अर्न मोर दे स्पेंड मोर दे सेव मोर. सो यहाँ पर हमने इनकम को इंक्रीज कर दिया और कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रही है. जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे लोगों के खर्चे बढ़ते हैं बेटा. सेविंग भी इंक्रीज होगी. व्हेन पीपल आर अर्निंग 200 करोड़ इन द इकोनॉमी एंड दे आर स्पेंडिंग 200 CR, देयर सेविंग इज नथिंग एट ऑल. एंड व्हेन दे आर अर्निंग 300 आउट ऑफ विच they are spending 280, they are actually saving 20 crore. And when they are earning 400, they are spending 360, that means they are saving 40 CR. Then how do we calculate average propensity to save of people in the economy? They are saving nothing at all, so their average is nothing. Now they are saving 20 out of 300, that will be about 0.0666, terminate करेगा, let's keep it 0.07. Furthermore 400 का बेटा 40 कितना परसेंट होता है? 10% can be written as 0.10. So APS can be easily calculated by dividing savings of all the people in the economy with income of those people in the economy, and we will be able to know their average preferences to save in the economy. That's what this propensity means कि लोगों की क्या preferences हैं saving को लेके. तो जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे लोगों की जो प्रेफरेंसेज है सेविंग को लेकर वो इंप्रूव होती चली जाती हैं. Fine. So here is a schedule and a diagram related to same. Income is increasing. So earlier you see when people are earning nothing at all, they are actually having this saving of 40. Here if I want to make a column related to consumption for better clarity, here income is nothing, still people are spending 40 CR, that means that they are saving negative 40. बेटा 40 करोड़ अगर कंजम्पशन में जा रहे हैं तो वो कहाँ से आ रहे हैं? पुरानी पास्ट सेविंग में से. 100 CR उनकी इनकम है, 120 उनका कंजम्पशन है, दैट मीन्स नेगेटिव 20 और डिस सेविंग्स इज ऑफ 20 CR. Here is break even point. Whatever income people are earning is whatever they are spending, that will make their saving as zero. In other words, break even point. Now after break even point, they will about to start save actually. So 300 income pay they are spending 280. As a result, they are able to save 20. At income 400, they are spending 360. As a result, they are able to save 40. So you know after break even point, savings have become positive. Prior to break even point there was dis savings in the economy, and then how did we calculate the value of average propensity to save? See here they are, dis savings is minus 40, or you know dis savings is 40 because if I'm using the word dis savings it automatically makes savings negative. Their income will be 0. So minus 40 को आप 0 से divide करोगे तो not defined, we cannot define this term. Savings are minus 20 और dis savings is 20, income will be 100, that means कि it will be -20% ऑफ द इनकम दे आर सेविंग. सो अगर किसी की इनकम यहाँ पर 1000 होती है, लेट्स सपोज एक पर्टिकुलर पर्सन की इनकम इस लेवल पर पूरी कंट्री में, यहाँ तो पूरी कंट्री की बात हो रही है ना. अब अगर हम एक सिंगल पर्सन का एग्जांपल लें, अगर सब लोगों ने मिलकर यहाँ 100 करोड़ अर्न करे हैं, सब लोगों ने मिलकर यहाँ पर एक्स्ट्रा 20 करोड़ खर्च कर दिए अपनी पुरानी सेविंग में से, तो अगर किसी ने ऐसे टाइम में 1000 रुपए कमाए होंगे तो उसने खर्च कितने करे होंगे बेटा? 1200. तो 200 रुपए लोगों ने एक्स्ट्रा खर्च करे हैं जिन्होंने 1000 रुपए कमाए हैं. किसी ने 10,000 रुपए कमाए हैं तो उसने ऑन एन एवरेज 12,000 रुपए खर्च कर दिए, तो एक्स्ट्रा 2000 रुपए मतलब एक्स्ट्रा 20% खर्च हो रहा है यहाँ पे. और अगर इकोनॉमी में ये लेवल आ जाता है जहां पर बेटा इनकम कितनी हो जाती है लोगों की? 200 करोड़. तो यहाँ पर लोग जितना अर्न कर रहे हैं उतना ही स्पेंड कर रहे हैं, सेव कुछ नहीं कर रहे हैं. तो ऑन एन एवरेज देखा जाए तो लोगों की सेविंग कुछ भी नहीं है. तो ऐसे लेवल पर अगर कोई 1000 रुपए कमाएगा तो वो 1000 रुपए ही खर्च कर रहा है, और अगर कोई 10,000 कमाएगा तो वो 10,000 रुपए ही खर्च कर रहा है. ये एक बेटा एवरेज होता है. बेसिकली लोगों की इनकम अगर बढ़ती है तो लोगों की जो एवरेज प्रेफरेंसेस है सेव करने की वो भी इंक्रीज करती है विद टाइम. अब यहाँ पर इनकम अगर 300 हो गई तो लोग बेटा इसमें सेव कितना कर रहे हैं? 20, दैट इज अबाउट 7%. तो 0.067 आई टोल्ड यू, यू कैन राउंड इट ऑफ एंड राइट इट एज 0.07.
फर्दर मोर बेटा 400 करोड़ की इनकम में लोगों ने 40 करोड़ सेव करा, दैट विल बी 10% ऑफ व्हाट दे हैव अर्न. एंड नाउ यू कैन सी savings will be on your y-axis, and I've told you many of the times that income is to be always plotted on your x-axis right here. Initially savings are negative, that is the reason आप देख रहे हो savings आपकी negative point से शुरू हुई है, that will be -40. Initially it was autonomous consumption, तो as a result here for saving it will be negative autonomous consumption. कितनी वैल्यू है बेटा? ये 40 है यहाँ, मतलब आप सेविंग को आप एज्यूम कर लो इट इज 40, -40 टू बी वेरी स्पेसिफिक. ठीक है, ओरिजिन के बेटा वाई एक्सिस के बिलो वाली वैल्यूज नेगेटिव में होती है, ऊपर वाली पॉजिटिव में होती है. यहां पर आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ गया. फाइन. विद इंक्रीज इन इनकम यू आर गेटिंग इंक्रीज इन सेविंग्स ऑल्सो. तो बेटा इनकम के साथ साथ सेविंग में भी इंक्रीज आ रहा है. इस पर्टिकुलर लेवल पर अगर आपको बोला जाए कि एपीएस की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ कितनी आएगी, तो बेटा एपीएस की वैल्यू निकालने के लिए व्हाट इज द फॉर्मूला? सेविंग्स को इनकम से डिवाइड करना होता है. हाउ मच इज द सेविंग्स एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट? सो सेविंग है बेटा यहाँ पे O से लेकर R तक. दिस इज द वैल्यू ऑफ सेविंग इन दिस डायग्राम. हाउ मच वैल्यू ऑफ इनकम इज देयर? O से लेकर, ओरिजिन से लेकर Y1 तक इज द वैल्यू ऑफ इनकम ओवर. विद दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एपीएस एट पॉइंट A. इनकम जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे सेविंग की वैल्यू ऊपर जा रही है. इनिशियली जब इनकम 0 थी तो सेविंग डिस सेविंग्स में थी, नेगेटिव में थी. तो जहां से बेटा सेविंग स्टार्ट होगी वो हमारी नेगेटिव ऑटोनॉमस कंजम्पशन होती है. बिकॉज इवन व्हेन इनकम इज 0 वी हैव टू एक्सप्लेन द फिनोमिना कि देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ कंजम्पशन व्हिच विल लीड टू डिस सेविंग्स इन द इकोनॉमी. व्हेन पीपल विल स्टार्ट अर्निंग मोर इनकम इन द इकोनॉमी देयर सेविंग्स इज आल्सो इंक्रीजिंग एज वी कैन सी, एंड एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम द इनकम विल बी इक्वल टू कंजम्पशन. एज अ रिजल्ट सेविंग विल बी इक्वल टू 0. एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट सेविंग इज 0. After achieving break even point, you see savings have become positive. जब break even point आ गया उसके बाद saving positive होनी start हुई है. As a result, now this portion shows savings are positive. At this, you know, ये जो मैंने बेटा यहाँ पे lines draw करी हुई हैं, this shows dis savings. यहाँ पे negative में जा रही है savings, after break even point positive हुई है. इस particular point पर APS की value को calculate कैसे करा हमने? Savings divide by income is the formula to calculate the value of APS. So this is the concept of APS. I believe it is clear to all of you. There are certain important things also that we should be taken care of, क्योंकि इससे रिलेटेड बेटा MCQs आ जाते हैं या 1 मार्कर क्वेश्चन आ जाते हैं. तो इन क्वेश्चंस का ध्यान रखना that APS का फॉर्मूला क्या होता है? सेविंग्स डिवाइड बाय इनकम होता है जी. ठीक है, 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. क्यों 0 हो सकता है? क्योंकि सेविंग 0 हो सकती है, और अगर न्यूमरेटर 0 हो गया तो आंसर भी 0 आएगा. ब्रेक इवन पॉइंट पे बेटा यही तो हो रहा था. याद है इनकम कितनी थी? 200. कंजम्पशन भी 200 हो गई थी, सेविंग बेटा 0 हो गई थी, विच लेड योर एपीएस एज 0. सो यस डेफिनेटली एपीएस वैल्यू कैन कम आउट टू बी 0. फर्दर मोर बेटा कभी ये 1 से ज्यादा नहीं हो सकता. हाउ कम? यू कैन सेव मोर एज कंपेयर टू इनकम, ऑल्दो यू कैन स्पेंड मोर. ठीक है, वी नेवर नो अबाउट द इमरजेंसीज. सो इन दो सिचुएशंस आपकी जो कंजम्पशन है वो इनकम से ज्यादा हो सकती है. एज अ रिजल्ट एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1. ठीक है जी, बट सेविंग कभी भी इनकम से ज्यादा होगी, कांट हैपन. एज अ रिजल्ट एपीएस कभी बेटा 1 से ज्यादा वैल्यू आपको नहीं दिखा सकता. तो एपीएस की वैल्यू जनरली इन द इकोनॉमी कैन नॉट बी मोर देन 1. फर्दर मोर एपीएस कैन बी नेगेटिव और लेस देन 1. इसके पहले क्या हो रहा था? इनकम कितनी थी? 100. सेविंग कितनी बेटा यहां पर हो रही थी आपकी? -20, क्योंकि कंजम्पशन आपकी 120 थी. तो सेविंग वाज -20. एज अ रिजल्ट योर एपीएस केम आउट टू बी -0.20. फाइन. सो एपीएस नेगेटिव भी हो सकता है और 1 से लेस भी हो सकता है. 0 तो बेटा वैसे भी 1 से लेस वाली फिगर ही आ गई थी 200 पे, एंड इनकम जब 100 हो गई है तो एपीएस आपका नेगेटिव हो गया. तो इट कैन हैपन. और जैसे जैसे इनकम राइज होगी वैसे वैसे एपीएस बढ़ता है. अब देखो 100 से इनकम कितनी हुई है? 200. एपीएस -0.20 से 0 हुआ है, मतलब कि इंक्रीज हुआ है. टोटली फाइन. नेगेटिव से कोई वैल्यू 0 आ रही है तो वो वैल्यू में इंक्रीज ही तो आ रहा है बेटा. सो दैट्स व्हाट एपीएस इज ऑल अबाउट. नाउ लेट्स टॉक फ्यू थिंग्स अबाउट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है वैसे वैसे लोगों की सेविंग भी बढ़ती है, और इसी चेंज को एक्सप्रेस करा जाता है विद द हेल्प ऑफ एमपीएस. हियर इज अ शेड्यूल एंड डायग्राम रिप्रेजेंटिंग the concept of marginal propensity to save. So as we can see, income is continuously increasing by 100 CR. So there is a change of income of 100 CR in the economy. And as a result of increase in income by 100 CR,
देयर इज इंक्रीज इन सेविंग ऑफ 20 CR। CR मतलब बेटा करोड़। -40 से -20 में 20 का इंक्रीज है, -20 से 0 में भी 20 का इंक्रीज है, 0 से 20 में तो क्लियरली विजिबल है 20 का इंक्रीज है, 20 से 40 में भी 20 का सेविंग में इंक्रीज है। यहाँ पर सेविंग इनकम कॉन्टिन्यूसली बेटा 100 से इंक्रीज हो रही है। सो हेयर वी हैव इनकम, हेयर वी हैव सेविंग, देयर इज इंक्रीज इन इनकम विच इज लीडिंग टू इंक्रीज इन सेविंग्स। हाउ डू वी कैलकुलेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव? इट इज बेसिकली एक्सप्रेस्ड एज change in saving due to change in income. So here change in income is of 100 CR, change in saving is of 20 CR. So how do we calculate it? 20 को बेटा डिवाइड कर देंगे इनकम के चेंज के साथ and we will get the value 0.20. कॉन्टिन्यूसली आपकी सेविंग 20 से इंक्रीज हो रही है और कॉन्टिन्यूसली हमारी जो इनकम है वो यहाँ पे 100 से इंक्रीज हो रही है, तो दिस विल रिमेन अनचेंज, क्योंकि हमने शेड्यूल में वैल्यूज ही कुछ इस तरीके से लिए हैं कि इनकम को कॉन्टिन्यूसली हमने 100 CR से इंक्रीज किया, सेविंग को हमने कॉन्टिन्यूसली 20 CR से इंक्रीज करा है। एज अ रिजल्ट आवर MPS इज रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। Okay, so here as all of you know, autonomous consumption right here we have our autonomous consumption. Income is increasing, as a result saving is increasing. At this point savings are zero. We also call this point as break even point. Prior to break even point where income is equal to consumption, we have this saving. So here जो बेटा ये line वाला portion है, it is showing you this savings. After break even point your savings are becoming positive. So if we want to calculate savings का जो change आया है from B to point A, what do we have to do? We have to consider the change in saving and consider the change in income. So what is the formula for MPS? Change in savings divide by change in income. So saving बेटा R से P हो चुकी है and income Y1 से Y2 हो गई। With this formula you can calculate MPS and that's it. तो MPS को निकालने के लिए सेविंग आपकी यहाँ से यहाँ चली गई, इनकम आपकी फ्रॉम Y1 टू Y2 चली गई है, एंड विद दिस यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ MPS, that is change in savings because of change in income. And there are few things that we should consider about MPS, and that is the relationship between MPS and MPC will be equal to 1. I will talk more about this in our next lecture, that what is the relationship between APC, APS and MPC, MPS. Right now you should only consider that जो बेटा हमारी वैल्यू निकल कर आएगी MPS की, it will lie between 0 to 1. Just you saw कि हमारा MPS बेटा कितना चल रहा था 0.20, तो वैल्यू will be between 0 to 1, and there is a relationship between MPC and MPS, and there is also a relationship between APC and MPS which will be covered in the next coming lecture. अगर बेटा MPS और APS से रिलेटेड कोई भी डाउट डिफिकल्टी है तो फील फ्री टू आस्क टू मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो और ऑन माय इंस्टा हैंडल, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। हैव अ नाइस डे।